Hello everyone, my name is Rashi Singh. I have done my master's in applied microbiology and biotechnology, and I have written mains of UPSC twice with a subject optional as a anthropology. So today I'm going to take the lecture about the MPPSC history syllabus and its exam pattern. So if we talk about the exam of the MPPSC, it would be like conducting in the three steps. One is आपका MPPSC prelims, second is mains, the third one is a personality interview. In the MPPSC prelims, mains or interview, you can find the history questions everywhere. So history questions everywhere, and that the history would be asked into the general studies one, and here in the आपका general studies in the mains, if we talk about the general studies one paper, the history geography. So if we talk about what would be the prelim syllabus, so the prelim syllabus also comprising in the four steps including the first one is आपका ancient history, the second one is आपका medieval history, the third one is आपका modern history, and modern history including the post independence also. ठीक है, post independence also, and the fourth one is culture and arts. Yeah, art and culture, you can say. Art and culture basically, it's not like that ki we don't need to study about. Here they have mentioned you need to study about the MP history, I'm sorry, MP history, but you need to focus about all the art and architecture which is like there for all over India. So in the prelims, here what in what context they have asked the syllabus. This is like the history of India, independent India. History of Indian India, matlab aapka it comprising of all ancient, medieval, and modern. Independent India, this is the post-independence. Current affairs on the basis of all those topics. Indian social, economical, and political situations from the time beginning of the ancient India, how it was as compared to the modern one, along with the questions related to the Indian independence movement. They have specifically focused about the Indian independence movement. So Indian independence movement does not include only the events happened after the 18 revolt of 1857, but they comprising of all the tribal revolts, peasants revolts, which happened before the 1857 even. So what all were the moments which led to get the independence, so they all will be including in that. Similarly, this history and culture of MP, it will also going to ask the related questions about the dynasties. What they will focus about the dynasties of MP, contribution of the important dynasties in the history culture of Madhya Pradesh, and the questions more focused about to the tribals, what kind of a revolts they have done, what kind of a culture they are having, arts, architecture, fine arts, and historical personalities of MP in the past, in the present also. So this is the pre-syllabus, and if we talk about the main syllabus, mains में they just have included आपका world history also. Rest of the syllabus, if you can see, you can find every the topic is very much similar to the prelims one. So in world history, they have mentioned certain topics which we need to cover. The world history, रेनेसा उस टाइम पे किस किस जगह पे किस तरीके की अपराइजिंग्स हो रहे थे, how the people are getting awakened at that time, revolution of England, French Revolution, Industrial Revolution, Russian Revolution, and World War First and Second. Okay? And the next is Indian history, which included all the Indian history, ancient, medieval, and आपका the modern one even. And here you can find they have mentioned 11th to 18th century AD. ठीक है, from the 11th century से लेके 18th century तक जितने भी political, social, economical events हुए थे in आपका central India, that we all need to cover. British impact rule क्या था, कैसे था, किस तरीके का, what was the impact of British rule in India, whether it was positive, negative, what events happened in the past, that all we need to. And Indian response to the British rule क्या था, peasants. अब देखिए, everything having a positive and a negative impact. British came to India with different positive aspects also, but majorly the negative also. British came to India, doesn't want us to grow. They just want to take out the basically, if you can say, the as much as can revenue they can collect from India. They just came to India for that only. So
we need to study both the aspect, the positive also, negative also. The peasant tribal revolts and the first struggle of independence. That first struggle of independence, why it is important? That was the revolt of 1857, which was called as the first struggle of independence. Why it is called as a first struggle for the independence, for war of independence? Many theories were there behind that. We need to study line by line. Then the Indian Renaissance, the awakened India, you can say like that, the freedom, the national movements and its leader with a special reference to MP. How the MP peoples or the leaders at that time contributed for the independence of India, emergence of India as a republic, reorganization of the states, formation of MP, and major events which happened after the independence, like the post independence period in the MP specifically, they have asked. Third is like, or you can say fourth is the art and culture with a special reference. They have mentioned with a special reference. With a special reference means you need to study the MP one also, or the general art and architecture also, yeah, culture you can say. So the heritage, आप कह सकते हो different salient aspects of art forms जितने भी है, literature है, festivals है, architecture है, everything they have included. Then the World Heritage Sites of India and tourism in Madhya Pradesh, that we need to focus over the main syllabus. So main syllabus में history portion will become inside the heading of, you can say in the paper of GS1, where we need to study the history. We don't need to complete this. So how we are going to talk about the history in this way? So the history we need to see uh, in these 5 headings. These are the chapters which I have like mentioned, which we need to take the chapters in a way like, wait a minute. Yeah. So I have divided into 5 headings in the way key the political. First, we need to focus over the general history. So general history, which comprising of all the things like the making of India, you can say. So the political, economical, social issues in the Indian history, you can say this, the economical history and Harappan civilization. Then the unit second में आप क्या पढ़ेंगे, जितने भी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, अब ये इंडियन हिस्ट्री के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, सिंस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द एडवेंट ऑफ मैन, सिंस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द एडवेंट ऑफ मैन से लेकर हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता एंड रेस्ट ऑफ द आपके जितने भी रूलर्स यहाँ पे ग्रो करते हैं, अबाउट ऑल द हिस्ट्रीज वी नीड टू स्टडी सिंस लाइक जब आपके मुगल्स आते हैं, तो जब से मुगल्स आ जाएंगे द टाइम पीरियड विल बी चेंज. उसके बाद से क्या रहेगा, आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री अबाउट इंडिया फ्रॉम 11th to 18th century which we need to study. That is basically the medieval history part. The इनमें हम पढ़ेंगे the Mughal, about the Mughal ruler, their administration, emergence and the composite culture, and impact of the British rule in Indian economy and society, that we need to study. In the third aspect we will complete the reactions of Indians, like ये आपका इंडिपेंडेंस के लिए पार्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा, रिवोल्ट से स्टार्ट हो जाएंगे. तो डिफरेंट रिवोल्ट्स के बीच में हम पढ़ेंगे पीजेंट्स रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट्स एंड द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज लाइक आपका द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोला गया द रिवोल्ट ऑफ 1857. And then Indian Renaissance. Then how we started formulating the government for India, like how we started participating into the rule making things with Britishers, that all the things like आपका आप कह सकते हो non disobedience movement, non cooperation movement, different meetings, and the how the formation of Congress happens, that all we need to study. Then emergence of India republic nation, as a republic nation, किस तरीके से इंडिया रिपब्लिक हुआ, आजाद कैसे हुआ. Then reorganization of the state, that is a part of a post independence, so there will be the post independence part. And the formation of MP, कि MP का formation क्या हुआ, जैसे आप पहले से जानते होंगे या फिर अगर नहीं पता तो that was like the part आपको in the starting. अब अगर आप बात करें तो India were having many petty states, ठीक है, they were divided among the provinces like that. So that was how, on which basis the Madhya Pradesh has been demarcated over the mainland of India. So that we need to study major events after the post-independence period. Then Unit 5, independence movement in the Madhya Pradesh, Indian culture, heritage, with a special reference to
जहां जहां पे भी स्पेशल रेफरेंस लिया है कि मोर फोकस वी विल अबाउट द एमपी साइड ओनली, बट वी नीड टू कवर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखेंगे आज से 5 या 10 साल पहले, ऑल्दो अभी थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है, बट क्या है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस द पैटर्न दे हैव लाइक लिटिल बिट चेंज फॉर द एग्जाम, माइट बी that will come in the exam, but we need to focus over, हमको सारी चीजें हिस्ट्री के बारे में देखनी पड़ेगी। तो salient aspect of art and architecture ये हम करेंगे अपना यूनिट 4 के अंदर करेंगे। देन यूनिट 5 में more focused about the different dynasties which were there or different rulers at that time which were ruling in the MP side। तो गोंडवाना, बुंदेली, बाघेली, होलकर, सिंधियास, भोपाल स्टेट from the beginning till the independence, कौन कौन यहाँ पे रहा, किस किस तरीके से रहा, and how and what were the rulers at that time who were ruling in the MP. So that was a just a minute. That was a syllabus which we need to cover. What are the sources for that, which is very important. See, rest of the things like I have the notes you will get, which like I have taken out from all the books mostly, but still if you need to focus over the books you wanted to, so these are the certain books which the notes which I have prepared from the these sources. So these sources include these sources include basically more focused about the NCRTs. Okay? The NCRTs from the 6th to 12th, and for the history, which I have focused more about the Tamil Nadu History Board's book also. Then the ancient history from R.S. Sharma, medieval history from Satish Chandra, history of modern India from the Vipin Chandra. Modern history by Rajiv Aher, Spectrum. Spectrum basically, see, after completing your history from all these things and this modern history and all, Spectrum is the one jahan se aapko kya karna padega, mostly the prelims focused. You can revise it from there. If you wanted to read it further, mostly people used to you have heard about कि people used to suggest that कि आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, this is important. I'm also saying important, but अगर आप ये ऊपर वाली बुक पढ़ लेते हैं, history of modern India and NCRTs अगर आप cover कर लेते हैं, तो that would be like if you can go through with a like जो आपको पीछे इसका gist दिया हुआ है, the summary which is there in the modern history, for the modern history, that you can complete with that. Then art and architecture के लिए हम देखेंगे नितिन सिंघानिया, सीसीआरटी वेबसाइट, एनसीईआरटी की फाइन आर्ट्स की 11th क्लास की बुक। एंड फॉर अगर आप बात करें कि करंट अफेयर्स एंड ऑल फॉर द एमपी स्पेसिफिक कहाँ से हम देखेंगे, तो दैट आपका एमपी प्रदेश एक परिचय, एमपी हिस्ट्री विच इज लाइक आपका मैग्रॉ हिल पब्लिकेशन की है, दैट्स अ वन। मध्य प्रदेश एक परिचय फॉर एमपी हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ इंडिया बाय अलबशम। अब क्या है कि यहाँ पे आप अगर देखना चाहते हैं तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। बहुत बड़ी सी बुक है ये, इतना आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे सर्टेन टॉपिक्स इफ यू वांटेड टू लाइक, जिनका बोलते हैं कि दिस बुक इज वेरी गुड, बट द पीपल हु आर हैविंग ऑप्शनल एज देयर हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल दे आर हैविंग, दे कैन गो for this book. But the thing is, अगर आपको if you are focusing about as a GS paper, for the GS paper these certain topics you can cover, these certain topics you can मतलब you can see with that the Indus Valley civilization, Ashoka, Gupta, Buddhism, Jainism, philosophy, I'm so sorry ये साइंस पता नहीं कहाँ से आ गया, साइंस आई मीन इसके अंदर दिया हुआ है एंशिएंट एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देन ल्यूसेंट जनरल नॉलेज के लिए अगर आप देखेंगे वो देख सकते हैं। मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड, अब मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, बेसिकली अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो रेनेसा दिया, ठीक है, रेनेसा इन द वर्ल्ड जो फर्स्ट टॉपिक था वर्ल्ड हिस्ट्री में, अगर हम देखें तो वहां पर जो जितने भी डिफरेंट रेवोल्यूशंस हो रहे थे, ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न वर्ल्ड अगर आप बात करें तो दोज ऑल यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम हेयर ओनली। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं। बाकी नॉर्मन लो इज अ वन, ही इज अ राइटर ऑफ दिस बुक द मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। द तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री बुक यू कैन से, I mean you can check it out, and the मृणाल के कुछ मृणाल की वेबसाइट पे some history portion was there, that is like the world history, you will get the topics, the notes you will get from there only. Then the Jain and Mathur is a book,
which is like आप इनकी बुक के लिए भी ले सकते हैं. And the themes of history NCERT books of standard 12, ठीक है, which is like very much important, you need to study. अगर आप वो करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, or else the rest of the topics will be covered in the class only. See, if we talk about the previous year questions paper asked, so in the previous year question paper, the question they have asked, history syllabus is so wide, okay? For 20 question, 15 question, what we need to study, we need to focus over the topics which mainly going to ask into the exam. History में सारी चीजें नहीं आती हैं, ठीक है? Nobody is going to ask you the chronology, I mean the dates and all, but the chronology in the history is very important. What kind of a question they are asking, what topics they are mostly focused on. Like if you are going for the UPSC one, the UPSC mein they definitely going to ask you the question from Ashoka, the Gandhi, okay? These are the two very lovable topics of the UPSC. Similarly, this kind of a approach has been found in the different exam. Most of the like state exams के कुछ hot topics होते हैं. Those hot topics I have inquired about. These are the some major events and major dynasties of India जो आपको देखनी है, जहां से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं. This is the one. Freedom movement में participation, who were the one who participated in the freedom movements in the MP, that is the one. Major art and sculptures of MP, that's the one. Major festivals से questions अगर I have checked it out, और अभी इसके बाद में आपके prelims papers का और mains के papers का कुछ analysis किया है, what kind of question they are going to ask mostly, तो वो अभी will check it out. So major arts and sculptures of the MP, major festivals, folk music, arts, folk literature. This is the one. Literator and the literatures. Basically, किसने कौन सी book लिखी? This is a very favorite topic I am telling you from the MP previous year questions I have seen. कि in a whole 20 questions, mostly the books they have asked, some 3 to 4 questions are generally they are going to ask you in every prelim. 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स आई हैव सीन, देयर आई हैव फाइंड की मोस्टली 3 to 5 questions they ask you generally over this books literature and about the literature. Even religious and tourist places of MP, history special reference need to be famous temples, type of Vedas कौन से थे, because Vedas के बारे में कभी ऋग्वेद के बारे में पूछ लिया, कभी कौन से वेद के बारे में पूछा, काइंड ऑफ थिंग्स लाइक उसी के इर्द गिर्द, ठीक है? ट्राइबल पेंटिंग्स कहाँ पे कौन सी पाई जाती हैं, क्या उनकी स्पेसिफिकेशंस हैं, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, एंशिएंट डायनेस्टीज हो गए, आई एम सो सॉरी, एंड द किंगडम्स, ऋग्वेदा, लेजिस्लेशन इन द ब्रिटिश इंडिया, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है? And important dynasties of MP, contribution to the important dynasties in the history and culture. किन्होंने कौन से temples बनवाए, what they have like done for the MP development and all, these are the things like. And architecture personalities of MP, these are the ones, some hot topics which every time they're going to ask you about the prelims and mains. So these are the some analysis I have done about the PYQs. ठीक है? इन अगर आप देखें तो 2015 में these are the some screenshots I have taken that you can check it later. The 2015 में अगर देखें तो topics इनको जो पूछे गए थे, number of questions I have analyzed that the books and the writers were 5. The question they have asked from this topic. Ancient history के 2 question थे, dynasties के ऊपर 1 था, that the dynasty they have asked that was Gupta dynasty. Medieval history में Sikhism में एक आया. Mughal, specifically from the Mughals dynasty only, the 2 questions have been asked. Modern history से 2 थे, social issues से 1 था, post independence से 1 था, MP culture personality से 1 था. तो आप यहाँ पे अगर टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे देखो कि जो एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई और मिडिवल हिस्ट्री हो गई, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, करंट टॉपिक इज डिफरेंट. मोस्टली द करंट टॉपिक दे कैन आस्क फ्रॉम द फाइन आर्ट्स वाला जो आपका या आर्ट एंड कल्चर वाला जो सेक्शन है, वहां से करंट अफेयर्स के बेसिस पे पूछा जा सकता है. सपोज बुक्स हो गए, आपका ट्राइबल, आपके फेस्टिवल्स हो गए, किस तरीके का क्या हो गया, कौन सी पेंटिंग्स, कौन सा कल्चर वाज करंटली इन न्यूज, तो दे कैन आस्क द करंट टॉपिक्स फ्रॉम दैट पोर्शन. बट they are asking also the static questions also, like ancient history से 2 आप निकाल लीजिए, 2 हो गए, 3 हो गए, ठीक.
and here wait a minute, you can see the dynasty, ठीक है, ये आपके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 12 13, 13 question out of these 21, 13 questions specifically they have asked from the static portion only. Current से क्या है, mostly जो आपका आता है books and writers हो गया, 1 5 ये हो गए, then आपका 6 7 awards के basis पे हो गया, ठीक, 1 is important personality, that is like the MP culture, MP culture and the personality वाले topic से अगर आप ले सकते हैं ऐसे, तो 5 6 7 8 questions were from the current. तो आप यहाँ पे रेशियो देख रहे हैं कि स्टैटिक पोर्शन पे हमको ज्यादा फोकस करना है, तो दिस वाज द वन, ये एनालिसिस थी आपकी 2015 की. सिमिलरली अगर हम जाएं, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने इसीलिए स्क्रीनशॉट लिए दैट यू कैन चेक इट आउट, क्रॉस चेक किया आप किस तरीके से देखेंगे. देन 2016 में मूवमेंट्स पूछे गए, विच आई हैव टोल्ड यू, ट्राइबल मूवमेंट्स जितने भी थे, चिपको मूवमेंट के बारे में पूछा था. Books and author, again they are having a 3 questions from their personalities से 6 questions थे, tribal movement से आपके 2 questions थे, and prize से भी like the awards and all, ठीक है, that's the 1 question they have asked. Similarly from the 2017 अगर आप देखें तो medieval history से जितने भी आपके dynasties थे, medieval history में आपका जो slave dynasty थे, basically you can say 4 questions they have asked from the slave dynasties only. ट्राइबल रिवोल्ट से 1 था, एंशिएंट हिस्ट्री से 1 था, एमपी रिवोल्ट हिस्ट्री से 3 थे. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मोर फोकस कहाँ पे किया गया, कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं जहां पे आपको ये चीजें फोकस्ड है और वो आपको मिल रही हैं. Then the Vedas are the one, the architecture, Khajuraho, Mandua, Jantar Mantar. These are the 3 questions they have asked from that place. And book से आपके अगेन यहाँ पे भी 3 है, तो आप देख रहे हो 3 से 5 तक का कोई डिफरेंस कहीं पे भी नहीं गया है. न मॉडर्न हिस्ट्री से अगेन they were asked 2. Then if we talk about the 2018 का अगर हम बात करते हैं, again the books and authors and the Purans, economy and all, these again comprising of 4 questions again. टर्म्स अगर बात करें कि एंशिएंट हिस्ट्री टर्म्स बेसिकली बोल सकते हैं कि कौन सी चीज को क्या बोला जाता है, दैट इज द वन. द एंशिएंट हिस्ट्री, सतावना डायनेस्टी, अगेन द डायनेस्टीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री आल्सो, द स्लेव डायनेस्टीज, एवरी डायनेस्टी, द इंपॉर्टेंस इज देयर. You need to remember what kind of a person belongs to which dynasty, what important they have done when he was ruling at that time. The Shunga dynasty se 2 questions the, medieval history se 1 tha, and the modern history comprising of 4 questions. Again, if we talk about the 2019, yeah, this is the 2019 the PYQs. The Pamar dynasty se 1 tha, temple se 1 tha, painter se 1 tha. Then you can see कि different जो questions यहाँ पे पूछे गए, ऋग्वेद again, ठीक है, MP rulers, movement, architecture, books and authors, MP personalities. These are the certain topics which we need to focus more on. So these were the some previous year question papers analysis. If we talk about the detailed history के बारे में अगर हम बात करें, which we going to cover, तो ये certain topics हैं, जब हम class लेंगे उसके बारे में तब हम discuss कर देंगे. Let's come upon to the, this is a like a syllabus you can say, which I have made among the different headings which we need to study while during the class. So सेक्शन बी अगेन आपका अगर हम बात करें, ए आपका प्री हिस्टोरिक कल्चर से बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगा, बी सेक्शन आपका मेडिवल हिस्ट्री हो जाएगा, सी सेक्शन आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा, एंड द डी सेक्शन अगर हम बात करेंगे तो दैट वुड बी लाइक आपका एमपी स्पेसिफिक आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा. ठीक है, तो 4 सेक्शंस में आपकी हिस्ट्री डिवाइड हो चुकी है कि आपका एंशिएंट, मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड आपका आर्किटेक्चर. So today's topic I have taken from the ancient history. एंशिएंट हिस्ट्री से अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं हिस्ट्री क्या है. पहली तो अगर एक चीज, अगर एक टॉपिक को देखेंगे व्हाट इज हिस्ट्री, तो बेसिकली इफ वी डिफाइन द हिस्ट्री, तो हिस्ट्री इज समथिंग जिस चीज का पास्ट हम देख सकते हैं. ठीक है, जिस चीज का पास्ट हम देख सकते हैं, दैट इज हिस्ट्री. अब हिस्ट्री देखने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है और हम हिस्ट्री पढ़ते ही क्यों हैं. बिकॉज व्हेन वी वर इन आवर क्लासेस लाइक 9th 10th और 7th 8th में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर लाइक मोर फोकस्ड अबाउट यार हिस्ट्री क्यों पढ़नी, लोग तो पैदा हुए थे, मर गए, चले गए, एंड व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस हिस्ट्री नाउ. ठीक है, जिन लोग को जाना था वो लोग चले गए, अभी हमको ये पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है. बट द थिंग इज, हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट कि हाउ वाज आवर पास्ट, what are the mistakes and the good deeds we have done in the past, what we need to learn from the past, and how we can inculcate all those the good things, the mistakes in our future.
तो जिस चीज को बेटर करने के लिए, बिकॉज सी इफ वी वर हैविंग अ मोबाइल, आज से अगर 20 साल पहले की बात करें तो सम 20 years बिफोर वी वर नॉट हैविंग अ मोबाइल फोन्स, ठीक है, वी वर हैविंग अ दैट द वायर वन फोन्स एंड द फोन द साइज ऑफ दोस फोन्स आर वेरी मच आई मीन बिगर. तो बेसिक हमको देखना पड़ेगा, अगर बेसिक हमारा नहीं देखेंगे तो हम आगे के लिए इवॉल्व नहीं हो सकते. तो सी फॉर द इवोल्यूशन वी नीड टू स्टडी आर हिस्ट्री. तो द हिस्ट्री इज एंशिएंट हिस्ट्री. इफ वी टॉक अबाउट, तो एंशिएंट हिस्ट्री इज डिवाइडेड द इन द following subheadings. Those headings were the prehistoric culture, Indus Valley civilization, Vedic Aryan, pre-modern, modern, post-modern, Sangam age, Gupta age, post-Gupta period. अब we talk about what is this prehistoric culture. अच्छा, अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से भी पहले कुछ रहा होगा क्या? हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ सकते हैं? हिस्ट्री को हम पढ़ कैसे सकते हैं? हम हिस्ट्री को केवल ऐसे पढ़ सकते हैं कि when we are having certain kind of evidence कि some kind of a people were existed. Like if we take an example of dinosaurs, how we know कि वही dinosaur were existed in past? Either we have got certain kind of fossils of those dinosaurs, and fossils की अगर ना बात करें तो some kind of paintings from the ancient period of that time, might be those people at that time million years ago might have seen all those animals at that time. तब उन्होंने might be they have diagrammed something. Then we come to know कि these animals might be belongs to that period. तो that is an important question which we need to study कि भाई आप कहाँ हिस्ट्री को कैसे पा सकते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं. तो जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन वर एग्जिस्टेड, like the Britishers came to India and they said कि भाई these are the bloody Indians and they don't know what is kind of a civilization. ठीक है, they don't know how to live, they don't know how to dress, they don't know how to speak a language. They were not they are illiterate. ठीक है, they came us to literate us. But the thing is, when they find the Harappan civilization what existed million years ago at that place in India, which we called as India, तो then they realize कि भाई नहीं, some kind of a civilization जो अभी जिस तरीके से हम रह रहे हैं ये सही तरीका नहीं है हमारे रहने का. We were living in the civilization. अच्छा, अगर civilization की बात करें तो what is the basic meaning of civilization? Civilization का मतलब होता है कि where the people were living in the union, where there some kind of a language has existed, where some kind of a like system of living is there, like head हो गया, उसके nobles हो गए, the peasants हो गए, some kind of a unison is there among all those people. तो that is called as a civilization. The civil people जिनको तमीज़दार लोग बोला जाता है, uncivil people जिसको बोलेंगे वो आपके कौन से हो जाएंगे, early men हो जाएंगे. तो Britishers thought that like the African peoples were there, ठीक है, दे सिमिलरली थॉट अस कि भाई वी आर आल्सो द वन कि भाई हमारे को भी कोई पढ़ाई लिखाई आती नहीं है, वी डोंट नो एनी लैंग्वेज, दे जस्ट नो सम काइंड ऑफ अ मंत्र एंड ऑल, और इस तरीके की चीजें ये लोग करते रहते हैं, तो दे आर आल्सो अनएजुकेटेड. तो दैट वाज द वन वी नीड टू स्टडी द हिस्ट्री मोर. तो हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं अपना, तो इसको भी स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं. तो विल टॉक अबाउट द चैप्टर 1. तो चैप्टर 1 इज द स्टोन एज जिसको हम बोलेंगे. तो अच्छा, अभी यहाँ पे आने से पहले विल ठीक है, हम जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री. एंशिएंट हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री को हमने इटसेल्फ डिवाइड किया, इंडियन हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया, मेडिवल आर्ट एंड एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड आपका मॉडर्न हिस्ट्री. उसी तरीके से हमारी प्री हिस्टोरिक कल्चर भी है, उसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं. तो हिस्ट्री को भी अमंग 3 सबसेक्शंस में डिवाइड किया गया. कैसे अगर हम बात करें तो हिस्ट्री से पहले का टाइम जिसको बोला गया प्री हिस्टोरिक पीरियड, देन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड द थर्ड इज हिस्टोरिक पीरियड. तो इफ वी टॉक अबाउट कि व्हाट इज दैट, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि भाई ये आपका एक लाइन है, द सिंगल वन इज देयर, यहाँ पे आपने रख दिया प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इससे पहले वाला एंड इसके बाद वाला. ठीक है, तो इससे पहले वाला द प्री हिस्ट्री हो गया, इसके बाद वाला हिस्टोरिक पीरियड हो गया. हिस्टोरिक पीरियड जहां पे आ गया, तो हिस्टोरिक पीरियड का मीनिंग हुआ कि जहां से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. हिस्ट्री के बारे में पता चलता है फ्रॉम दैट पीरियड वी कैन कैलकुलेट द डेट्स. ठीक है, वी नो व्हाट इवेंट हैपेंड इन द पर्टिकुलर डेट. ठीक है, तो दैट डेट वी नो that some kind of a written evidence we have got from that, so that is called history. history जो लिखी गई, तो वहां से हमको बोलते हैं that is a historic period. तो फिर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या होगा और प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होगा?
तो प्री हिस्टोरिक पीरियड पे पहले चलते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब हिस्ट्री से भी पहले, हिस्ट्री से भी पहले मतलब जब हिस्ट्री लिखी नहीं गई थी। जब हिस्ट्री लिखी नहीं गई तो हमें पता कैसे चला कि भाई वहां पे कोई लोग रहते थे या सम काइंड ऑफ अ सिविलाइजेशन या कोई टाइप ऑफ सम काइंड ऑफ अ पीपल वर लिविंग एट दैट टाइम। तो वी कम टू नो कि रिटन एविडेंसेस वर नॉट फाउंड। ठीक है, रिटन एविडेंसेस नॉट फाउंड देयर, सम काइंड ऑफ लाइक आप उनको उनकी हिस्ट्री कोई नहीं मिली। ठीक है, रिटन एविडेंसेस नहीं थे मतलब सम काइंड ऑफ लाइक द लैंग्वेज वाज एब्सेंट एट दैट टाइम, दैट वाज कॉल्ड एज अ प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड को फिर हमें पता कैसे चला? प्री हिस्टोरिक पीरियड आप ये देख रहे हो कि दो यहाँ पे नीग्रोज जैसे बंदे बैठे हुए हैं, एंड दीज अर्ली मैन पीपल्स व्हाट दे आर डूइंग कि they are doing something, I mean kind of a things, and some kind of paintings were behind at the this rock they have made. तो these are the paintings हमें जो यहाँ से पता चलती हैं। एंड कार्बन डेटिंग इज अ टेक्निक जो बताती है कि पर्टिकुलर जो फॉसल था, चाहे वो रॉक है या कोई भी आपकी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसकी पर्टिकुलर कार्बन डेटिंग करने के बाद वी कम टू नो कि व्हाट इज द एज ऑफ दैट सब्सटेंस। तो उस सब्सटेंस की एज हमें पता चली, तो हमें पता चलता है कि सम मिलियन ईयर्स बिफोर सम काइंड ऑफ अ पीपल वर लिविंग who were making certain kind of drawings at that time, मतलब some kind of a people were existed at that time who know कि भाई इस तरीके का कोई जानवर था जो वहां पे ऐसे करके चलता था। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड का हमें कैसे पता चलता है? सम काइंड ऑफ अ स्टोन टूल्स वी हैव फाउंड, सम काइंड ऑफ अ बॉडी फॉसिल्स वी हैव फाउंड, बॉडी के स्ट्रक्चर्स, बोन स्ट्रक्चर्स वी हैव फाउंड फ्रॉम दोज प्लेसेस। तो फ्रॉम देयर वी कम टू नो कि सम काइंड ऑफ अ हिस्टोरिक पीरियड वाज देयर जिसमें कोई भी लैंग्वेज एब्सेंट थी बट पीपल वर एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। अब हम आते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पे। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आपका क्या कहा जाता है? एविडेंसेस वी हैव फाउंड अबाउट दैट पीरियड, literature we have found about that period, but that language was not able to decipher. Decipher means आप कह सकते हो कि which is not able to read, ठीक है, जिसको हम पढ़ नहीं पाए। Some kind of a language was existed at that time by which these people were communicating with each other in that way, but यहाँ पे जो लोग थे, जो आप अगर बात करेंगे कि जो प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड के जो लोग थे, उनकी जो लैंग्वेज थी, the present scenario people, the scientists, the archaeological scientists we are having, they're not able to they are not able to read or decode that language कि वो क्या कहना चाहते थे, क्या था क्या नहीं था। Then the historic period, as you know, कि जहां से हमको written evidences मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, फॉरेन अकाउंट हमको मिलता है इंडिका बाय मेगास्थनीज। ठीक है, तो दैट इज द टॉपिक अबाउट द हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हमको सोर्सेज हमारे को क्या क्या मिलते हैं? सोर्सेज हमें मिलते हैं कि वी हैव फाउंड द माउंट्स। माउंट्स क्या होता है? माउंट्स इज वेरी सिंपल थिंग विच यू कैन नो कि भाई बॉडी रिमेन्स अगर वहां पे किसी भी जगह पे है, उनके ऊपर क्या होता है? दैट लेयर हैज बीन पाइल्ड अप। जो आपकी सॉइल की लेयर होती है वो उसके ऊपर जमती रहती है ओवर द ईयर्स। व्हेन वी एक्सकवेट दैट साइड वी कम टू नो कि एट द बेस सम काइंड ऑफ अ civilization, some kind of a fossils, some kind of a I mean like the if it like we can take the example of the Harappan civilization. They come to know कि they were doing some kind of a digging at that place. There they know कि भाई यहाँ पे क्या था, अरे यहाँ तो घर मिले हैं, some kind of a mounds they have found over that place. तो some kind of a like वहाँ पे जब उन्होंने खुदाई वहाँ की करनी शुरू करते हैं, they excavated at that site, they found कि some kind of a like वहाँ पे घर बने हुए थे, potteries they have found, bones they have found. तो these are the some kind of a material जितना भी वहां का था वो चीजें वहां पे मिलती हैं। तो वो चीजें मिलती हैं। सम कॉइन्स दे हैव फाउंड सम काइंड ऑफ सील्स हो गए, पॉटरीज हो गए, सीरियल्स के एविडेंसेस हो गए, खाना पीना कैसा खाते थे क्या नहीं खाते थे। सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच वाज कॉल्ड एज अ मेगालिथ्स वो मिले हैं। मेगालिथ्स मतलब क्या हो जाएगा? लिथ्स मतलब होता है किसी भी चीज का रॉक, ठीक है, लिथ्स मतलब रॉक, मेगा मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स स्मॉल, एंड लिथ्स मतलब रॉक। तो ये आपके बेसिकली द पीपल यूज दीज स्टोन्स और द पीसेस ऑफ रॉक्स एज अ आप कह सकते हो कि एज अ वेपन दे हैव यूज्ड टू किल द एनिमल्स, टू स्पेयर द एनिमल्स, लाइक दैट। द एज ऑफ द मटेरियल डिस्कवर्ड आप देख सकते हो, रेडियो कार्बन डेटिंग होती है, उससे देख सकते हैं। कार्बन 14 इज अ टेक्निक विच दे यूज टू नो व्हाट काइंड ऑफ लाइक व्हाट इज द एज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। यहाँ पे दिया हुआ है प्री हिस्ट्री, नो वर्ल्ड रिटन एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अवेलेबल, बट दैट इज लाइक दैट स्टेज वाज कॉल्ड एज अ स्टोन एज। तो अगर हम बात करते हैं
अपनी प्री हिस्टोरिक पीरियड की। तो हमको पता चलता है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को बोला जाता था स्टोन एज। क्या बोलते थे उसे? स्टोन एज बोलते थे। अब स्टोन एज क्यों बोला गया? देखिए, जितनी भी हमारी अगर बात करें जो हिस्ट्री है, ठीक है, जो अगर हमारी प्री हिस्ट्री है, दैट इज डिवाइडेड अमंग्स द बेसिस। वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ राजा, व्हाट काइंड ऑफ अ grahapati, bhupati kind of a people were existed at that time. We don't know about what kind of a culture they are following, what kind of a like habitation they are having. We don't know about that, but we can assume on the basis of the substance we have found from those places. तो हमें ये चीज से पता चलता है, कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे जिनके सोर्स थे जो हमको यहाँ से मिलते हैं, तो उनके बेसिस पे हमें पता लगाया जाता है कि क्या तरीका रहा होगा उनके रहने का और कैसे लोग थे। तो हमको वहां पे उस टाइम की, उस एज का कोई भी मेटल नहीं मिलता। उस टाइम के जो भी चीज हमें मिलती हैं, दीज आर द थिंग्स मेड अप ऑफ स्टोन्स ओनली। तो उस चीज को क्या हुआ, जो हिस्ट्री पहले की थी, जो आपकी मेडिवल हिस्ट्री थी, वो तो डायनेस्टीज के हिसाब से बांटी गई, ठीक है। बट जो उससे आपकी प्री हिस्ट्री थी, जो प्री हिस्ट्री थी, वहां पे आपको कोई भी इस तरीके का रिटन एविडेंसेस और चीजें नहीं मिलती। तो उसको क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल दे वर यूजिंग इन द बल्क, दैट दे हैव डिसाइडेड द हिस्ट्री। तो इसीलिए आपको चालकोलिथिक पीरियड आप पढ़ोगे, स्टोन एज पढ़ोगे, तो स्टोन एज के बेसिस पे उसको जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था उसमें आपकी स्टोन एज आती है। तो आर्कियोलॉजिकल लिटरेचर्स, हमको हिस्ट्री किससे पता चलती है, आपकी लिटरेचर से पता चलती है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से पता चलती है, इंस्क्रिप्शंस अगर हमें मिलते हैं उनसे, कॉइन्स से मिलती है, बाय द अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स और इंडियंस इवन हमें मिलते हैं, कुछ टूल्स होते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, टाइम पीरियड देखा जाता है उनका, उनकी टेक्नोलॉजी देखी जाती है, व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दे वर यूजिंग, रिमेन्स ऑफ फूड हैबिट, जो फ्लोरा और फोना वहां पे मिला, काइंड ऑफ फूड हैबिट्स हमें उनसे पता चलता है, वहां के एनिमल्स कैसे थे वो पता चलता है, कौन कौन से एनिमल्स नोन एट दैट टाइम, ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट नहीं थे, नोन एट दैट टाइम। लाइक अगर हम स्नेक की बात करें, ठीक है, तो अगर और आप देखेंगे कि द पीपल, चले उस टॉपिक को आई टेक इट फर्दर, तो दैट इज अ वन की इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि कौन सा एम्पायर था, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन वहां का कैसा था, लैंग्वेज कौन सी यूज करी जाती थी, मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग मटेरियल्स क्या होते थे। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी कम टू नो फ्रॉम द these archaeological evidences. Sorry. Then अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें, तो प्री हिस्ट्री में द टॉपिक इज लाइक, प्री हिस्ट्री को स्टोन एज बोला गया है। प्री हिस्ट्री को स्टोन एज इसलिए बोला गया है क्योंकि वहां पे मोस्ट ऑफ द थिंग द पीपल वर यूजिंग, दैट वाज लाइक, जो उनका डेली में उनकी जो लाइफ में विच इज वाज इंपॉर्टेंट, दैट वाज आपका स्टोन था। स्टोन एज को भी यहाँ पे तीन चीजों में डिवाइड कर दिया गया है। स्टोन एज को भी यहाँ पे थ्री कल्चर या फिर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज लाइक द पेलियोलिथिक, देन आपका मेसोलिथिक, देन आपका नियोलिथिक, ठीक है। जब आपका पेलियोलिथिक मतलब अगर मैं बात करूं, पेलियो मतलब हो गया ओल्ड तरीके का, ठीक है, लिथिक मतलब अगर आप बात करेंगे तो दैट इज आपका स्टोन या समथिंग मेड अप ऑफ रॉक्स। पेलियो मींस इन द प्रिमिटिव यूज, पेलियो मतलब इन द प्रिमिटिव फॉर्म। तो बेसिकली अगर सपोज मुझे एक पत्थर पड़ा मिल गया एंड आई यूज दैट रॉक टू किल सम काइंड ऑफ एनिमल, तो दैट इज काइंड ऑफ आई यूज दैट रॉक एज अ वेपन। But did I furnish that? Did I make a kind of a bow or arrow or some kind of a shape I have given to that? No. Okay. So that is the one. When we were using the rocks in their initial form to use as a weapon, ठीक है, to use as a, आप कह सकते हो to use as a weapon, तो that was called as a paleolithic. Paleo मतलब जो पुराने टाइम के, in the primitive form basically अगर आप बात करेंगे। तो paleolithic culture की अगर हम बात करें तो ये आप देख लीजिएगा बेसिकली क्या है। तो पैलेलिथिक पीरियड आपका क्या बोला जाता है, दैट वाज बिलोंग टू आपका प्लेस्टोसीन पीरियड। प्लेस्टोसीन पीरियड को अगर मैं बात करूं यहाँ पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे आपका पैलेलिथिक पीरियड जो था कैसा था, तब हम अगर देखेंगे कि वो कैसा था, उसके बेसिस पे अगर हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे हिस्ट्री में, तो हमको पता चलेगा उसके बेसिस पे कौन सी चीज कैसी आ जाएगी। तो अगर पैलेलिथिक पीरियड की बात करें तो दैट बिलोंग्स टू द प्लेस्टोसीन पीरियड। प्लेस्टोसीन पीरियड को आपका आइस एज भी बोला जाता है। अगर कहीं पे आइस एज है, आइस एज है मतलब सब जगह पे कोल्ड होगा, मोस्टली स्नो इज एवरीवेयर, स्नो होगी तो वेजिटेशन वहां पे क्या होगा, कम होगा, वेजिटेशन कम होगा, ठंड होगी, वहां पे उस टाइम के कपड़े होते नहीं थे, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द अर्ली फॉर्म्स दे डोंट यूज टू वेयर द क्लोथ्स, they were living in the primitive form, like in the shade of the rocks, in the caves of the rocks, in the barks of in the barks or the trunks or the plants, big trees, ठीक है, big trees trunk में they can take a shed, and they lived in the herd. Basically आपने देखा होगा the herd of like the group of monkeys, if they are sitting into the winters, what they used to do, they just piled up together and they just sit into the group,
so that they can don't lose their body heat, because that time the clothes were not present. What the people of that time used to live, अब उस टाइम के लोग कैसे रहते होंगे? वेजिटेशन वर वेरी मच लो एट दैट टाइम, अगर आप बात करें, क्योंकि पैलेलिथिक पीरियड था, पैलेलिथिक पीरियड में हम बिल्कुल मान रहे हैं कि द एडवेंट ऑफ मैन, ठीक है। तो मान लिया कि उस टाइम पे आइस एज थी, प्लिस्टोसीन पीरियड आपका चल रहा था, उस टाइम पे वेजिटेशन आपका कम होगा, पीपल लिविंग इन द हर्ड होंगे, और बिल्कुल अपनी पैलेलिथिक पीरियड है तो अपनी प्रिमिटिव फॉर्म में होंगे, ठीक है, लाइक द अर्ली मीन्स यू कैन से। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि दे आर द वन व्हाट दे यूज टू डू। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें उनकी प्रॉपरली, अगर सही तरीके से बात करें, तो व्हाट दे यूज टू डू कि मोस्टली जो मेन होगा उस टाइम पे क्या करेगा, खाने के लिए क्या करेगा, हंट करेगा, ठीक है। दे मोस्टली यू डू द हंट, ठीक। फूड गैदरिंग होगा, तो बेसिकली मतलब कैसा हो गया, हंटर हो गया, गैदरर हो गया, मारा खाया, जो सामान उसको थोड़ा बहुत मिल गया, ही यूज टू पिक दैट एंड ही केम टू हिज होम, एंड यहाँ पे आने के बाद उसने उसको रख लिया, खा लिया। होम इन द सेंस कि यू कैन से द केव्स वेयर दे वर लिविंग, वेयर दे वर स्टेइंग टेम्परेरीली। द नेचर ऑफ द स्टोन टूल्स आल्सो वेरीड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, ठीक है। नेचर ऑफ द टूल्स अकॉर्डिंग टू वेरीड टू द क्लाइमेट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि किस तरीके के टूल्स वो यूज कर रहे थे, किस तरीके के जानवरों को मारने के लिए। सपोज इफ वी नीड टू किल अ एनिमल विच इज लाइक आपका बहुत ज्यादा वो है, आप कह सकते हो इज अ फास्ट रनिंग वन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसके पीछे भागोगे इधर, ठीक है। आप अगर उसके पीछे भागोगे तो यू नीड टू हैव द टूल्स विच इज लाइक वेरी लाइट एंड वेट। आप हैवी टूल्स लेके उसके पीछे नहीं भाग सकते। स्मॉल एनिमल्स होंगे तब आप उनको छोटे मोटे को बड़े पत्थर को लेकर उसके ऊपर फेंक सकते हो, मार सकते हो, ठीक है। तो दैट इज अ वन। तो अकॉर्डिंग टू द नीड देयर द डिमांड, या फिर कहते हैं द शेप्स ऑफ द वेपन्स हैव बीन चेंज। They don't know how to grow the food. They were living into the herds, kind of, you can say. They were the wanderers, okay. They were living into the rocks in the caves basically. And mostly agar hum baat kare to they are the one, the clothes they started having to wear to just to warm their body, that was like the leaves जो होते थे बड़े बड़े, उनसे अपनी बॉडी को ढक लेते थे, बाग्स होते थे, एनिमल लेदर्स होते थे। अगर हम बात करें कि हमको कहाँ से इनके एविडेंस मिलते हैं इन इंडिया, तो दैट इज लाइक द भीमबेटका केस, अर्ली एविडेंस हमको यहाँ से मिलता है। एंड व्हाट दे यूज्ड टू डू, जो वर्शिप करते थे, दैट इज दे यूज्ड टू वर्शिप द नेचुरल फोर्सेस। तो दिस इज द वन, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेसिकली इन लोगों की, तो दैट इज अ वन, दे बिलोंग्स टू द बेसिकली द 2.5 मिलियन बीसी से लेके 8000 बीसी तक का जो टाइम रहता है वो हम बोलते हैं यहाँ का प्री हिस्टोरिक पीरियड। पार्ट ऑफ आइस एज बोला जाता है कि बेसिकली आपका यहाँ तक का आपका आइस एज था, उसके बाद से सम काइंड ऑफ थ्योरीज वर देयर कि द टाइम हैज बीन चेंज, द अर्थ स्टार्टेड बिकमिंग वार्मर। अब जब वो वार्म होनी शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। स्टोन एज आपकी जो थी उस टाइम की, या सॉरी आइस एज जो थी आपकी, धीरे धीरे आइस पिघल जाएगी। आइस पिघल जाएगी तो वेजिटेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, वेजिटेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, एनिमल्स ग्रो करने ज्यादा शुरू हो जाएंगे, एनिमल्स ज्यादा ग्रो करने शुरू कर जाएंगे, दे आर हैविंग एन नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ फूड नाउ, दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिकॉज ठंड में घूमना इतना आसान नहीं होता। दे जस्ट नीड टू कम आउट टू kill the animals and they just go back to the home कह सकते हो, या फिर the place they are living, ठीक है, for the stay. The tools they were using, mostly the axes, the cleavers, the scrappers made up of the bones and stones. अगर बात करें तो they are generally belongs to the hunter gatherer side. Nomadic life they are using. They don't know about the agriculture. Found the shelled caves, shelters, cave shelters आप कह सकते हो. These found into the Bhimbetka cave you have heard about in the MP. MP से कुछ अगर भोपाल से बात करें तो some 30 to 40 kilometers is there, ठीक है, is a place. तो राय सिंह करके कुछ जगह है, दैट इज अ प्लेस वेयर दीज केव्स बिलोंग्स टू। द केव पेंटिंग फाउंड इन द आप आइटम, दीज आइटम्स अगर आप बात करें तो मतलब वहां पे क्या है, कुछ 800 आपके रॉक शेल्टर्स वहां पे मिलते हैं इन द भीमबेटका, जो आपके वहां पे एक बेयर पेंटिंग भी वहां पे बनी हुई है, और भी बहुत सारी तरीके की पेंटिंग्स बनी हुई हैं वहां पे। द पीपल वर फाइटिंग, पीपल वर किलिंग, पीपल वर सेलिब्रेटिंग, दे आर ड्रमिंग ऑल्सो। तो कलर विच दे हैव यूज्ड, कलर लाइक द they use the red color, white color painting, some kind of a yellow color is also there. So these are the certain colors they have used for those paintings. Like important sites अगर हम बात करें जो आपकी ancient civilization की थी, ancient civilization में भी कहाँ का आपका
प्री हिस्टोरिक पीरियड का, प्री हिस्टोरिक पीरियड के भी आपके स्टोन एज का, स्टोन एज में भी आपके कौन सी एज का, आपके पैलियोलिथिक पीरियड का। तो दीज आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट साइट्स विच बिलोंग्स टू द आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, लाइक आपका बेलन वैली है आपका उत्तर प्रदेश में, सोहन वैली प्रेजेंट डे पाकिस्तान, पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, नर्मदा वैली वर्ल्ड साइट्स में अगर बात करें तो दैट इज लाइक आपका अफ्रीका में है, दैट इज द वेस्टर्न यूरोप। If we talk about the Mesolithic period, अभी हमारा एंशियंट आपका ये द पैलियोलिथिक पीरियड अगर खत्म हो रहा है तो पैलियोलिथिक पीरियड के खत्म होने के बाद में अब क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड की इफ वी टॉक अबाउट, मेसो मतलब बीच का, ठीक है, जो ना तो ज्यादा आपका प्रिमिटिव टाइप था ना ज्यादा मॉडर्न था। न्यू मतलब हो जाता है न्यू, ठीक है, न्यू में न्यू हो जाता है, तो मेसोलिथिक मतलब बीच का, मिडल वाला जो पार्ट आपका रहता है। तो मेसोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें तो दैट इज लाइक आपका 9000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक रहता है आपका। फीचर्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका बात करते हैं कि भाई द टेम्परेचर स्टार्टेड गेटिंग वार्म दैट टाइम। अब वार्म स्टार्ट हो जाएगा तो आपका क्या होगा, फ्लोरा फौना आपका बहुत सारा होना स्टार्ट हो जाएगा, पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ह्यूमन अब क्या हो जाएगा, मूव फ्रॉम न्यू एरियाज। अभी तक वो एक जगह पे स्टैटिक था, वो क्या करेगा, इंडियन मेनलैंड के अंदर और जगह पे वो घूमना स्टार्ट करेगा। देन द ट्रांजिशनल पीरियड अगर बात करें, इंटरमीडिएट था पैलियोलिथिक से न्यूलिथिक के बीच का। साइज ऑफ द टूल्स अब क्या था कि पहले वो तो बड़ा पत्थर उठाया फेंक के मार दिया, फिर उनको लगा कि नहीं अभी तो एनिमल के पीछे भागना पड़ेगा, व्हेन दे नीड टू रन टुवर्ड्स द एनिमल दे नीड टू हैव द लाइट टूल्स, देन दे स्टार्टेड शार्पन ऑल दोस टूल्स। तो यहाँ पे जब शार्पनिंग होनी शुरू हो गई तो यहाँ पे मेसोलिथिक पीरियड हो गया। अभी इतने ज्यादा उनका उस हिसाब से टूल्स नहीं बनाते थे कि जिस हिसाब से एकदम मॉडर्न टूल्स बनाना शुरू कर दे, बट दे स्टार्टेड लाइक कि चलो छोटा सा स्क्रैपर हो गया, क्लीन करना है, इफ दे नीड टू टेक आउट द लेदर ऑफ द एनिमल तो व्हाट दे नीड टू डू। अगर हम बात करें तो पैलियोलिथिक पीरियड में जो आपका मेन था, दैट मेन वाज अ हंटर एंड गैदरर। हंटर एंड गैदरर जो मारता था, खाने के लिए ले आता था जो भी आपका जानवर आपको मिला। देन व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू डू कि भाई आपका जो एनिमल्स आपके रहते हैं, एनिमल्स को दे डोंट नो अबाउट द फायर, दे डोंट नो अबाउट द कम्युनिटी, दे डोंट नो अबाउट द एग्रीकल्चर, दे डोंट नो अबाउट टू हाउ टू मेक द होम एंड ऑल, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वर नॉट, दे डोंट नो हाउ टू डोमेस्टिकेट द एनिमल, ठीक है। तो दे जस्ट बिलोंग्स टू द वन कि वो एनिमल कैटेगरी में ही आते थे, दे जस्ट हंट फॉर द फूड एंड दे जस्ट कम बैक टू देयर केव्स ओनली टू स्टे देयर। बट अगर हम मेसोलिथिक पीरियड की बात करें तो ह्यूमन आपका क्या आना था, थोड़ा इवॉल्व होना शुरू कर गया था। अब इवोल्यूशन जब आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है तो द साइज ऑफ द टूल बिकम स्मॉल, टूल्स बिकम आपके थोड़े माइक्रोलिथ्स होने स्टार्ट हो गए थे। मेगालिथ्स मैंने क्या बोला, बड़े टूल्स, मेगा मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब स्मॉल हो जाता है। स्टोन सूज प्रोबेबली स्ट्रक टू द स्टोन्स टू बी यूज टू द सॉज एंड सीकल्स। अब क्या थे, वो हसिया वगैरह जैसी भी चीजें होती है ना, इस तरीके का होता है, तो वो बनाना शुरू कर गए थे, काटेंगे गला एकदम से ऐसे करके, ठीक है ना। तो सीकल्स एंड ट्रेपेजेस, तो दीज आर द वन दे स्टार्टेड मेकिंग, अपने टूल्स को इवॉल्व करना शुरू कर दिया था। अगर इंपॉर्टेंट साइट्स की हम इसकी बात करें तो यहाँ पे बागौर है, आदमगढ़ है एंड लंगनाच है, इट इज इन गुजरात। तो अभी देखिए दिस इज अ वन। एंड इफ वी टॉक अबाउट द न्यूलिथिक साइट्स, तो न्यूलिथिक साइट्स का हम बात करते हैं तो दैट पीरियड बिलोंग्स टू द 7000 बीसी से लेके 2500 बीसी तक। तो द थिंग इज, अगर बात करें हम अपना इस पीरियड की, इस पीरियड में आते आते क्या हुआ कि टेम्परेचर और वार्मर हो गया। अब कोई भी चीज है, इफ दे आर डूइंग समथिंग काइंड ऑफ अ बेसिक थिंग, दे विल इवॉल्व विद द टाइम। किसी भी चीज को आप प्रैक्टिस करोगे, जितना भी प्रैक्टिस करोगे, आपको उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी नहीं मिलेगी, यू कैन डू समथिंग बेटर। तो वही उन्होंने यहाँ पे करना शुरू करा। नाउ दैट टूल्स हैव बीन पॉलिश्ड वन। अभी पहले के टूल पॉलिश नहीं थे। पॉलिश का मतलब ये नहीं है कि वो लोग आए और उसके भाई अब कलर करेंगे, रेड कलर का चाहिए कि गोल्डन कलर का चाहिए, नो, दैट कलर वाज नॉट बिलोंग्स टू दैट पॉलिश वन। पॉलिश मतलब स्मूथनिंग। उस टाइम के जितने भी आपके जो आपके मेसोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें, मेसोलिथिक पीरियड के जो टूल्स होते थे, दे गेव द शेप बट दे डिडंट पॉलिश दैट। पॉलिश मतलब उसको स्मूदन नहीं किया था। नाउ दे आर मेकिंग द वेपन्स मोर एफिशिएंटली विद मेकिंग देम स्मूथ, विद मेकिंग देम मोर एफिशिएंट वन। तो दैट इज अ वन। तो सिस्टमैटिक एग्रीकल्चर यहाँ पे स्टार्ट कर दे, सॉरी, द पॉलिश स्टोन्स वर आल्सो स्टार्टेड यूजिंग। अभी यहाँ पे क्या है कि देखो, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक और आपका अगर हम बात करें नियोलिथिक, तीनों में डिफरेंस क्या था कि men started using the fire in the neolithic, men known to the fire mesolithic, men doesn't know about the fire, that is like आपका पैलियोलिथिक हो गया। रीजन क्या था कि जब आपका एरिया वार्म होना स्टार्ट हुआ, स्नो
डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पे क्या हुआ कि सपोज बिजली गिरी, आग लग गई, जंगल में फॉरेस्ट फायर हो गया, फॉरेस्ट फायर होने के टाइम पे क्या हुआ, आग लग गई, जानवर वहां पे जल के मर गए। व्हेन दे गो आउट टू ईट सम काइंड ऑफ एनिमल्स, तो व्हाट दे फाउंड कि भाई अभी एनिमल को उन्होंने उठाकर खाया, बिकॉज वो तो मर गया था, जल गया था, पक गया था। अब दे एट दैट मीट, तो दे फाउंड इट मोर टेस्टी, एक तरीके से कह सकते हो। तब वहां पे दे नो कि सम काइंड ऑफ फायर काइंड ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज दैट फायर। ठीक है, तो अभी फायर कहाँ से यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, नियोलिथिक से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आता है हाँ, तो पॉलिश टूल्स, tools, stone tools they started using. Burins, saws, chisels were found. Black burnish ware, फर्निश होगा, ये स्पेलिंग गलत हो गई, ब्लैक फर्निश वेयर्स, ग्रे वेयर, मैट इम्प्रेस्ड वेयर दे स्टार्टेड यूजिंग इन द पॉटरी। कहने का मतलब है कि पॉटरी, पॉटरी ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं बनाते थे, पॉटरी वो बनाते थे, मेसोलिथिक में भी दे यूज्ड टू मेक द पॉटरीज। बट वो पॉटरी यहाँ पे क्या होती थी कि वो पॉटरी आपकी हैंडमेड पॉटरी होती थी। हैंडमेड मतलब उसके शेप वगैरह जो भी दे रहे हैं, जनरली दे रहे हैं, कोई स्मूदन नहीं है, कोई शेप नहीं है उसका उस तरीके का, तो एक परफेक्ट शेप नहीं होते थे। तो यहाँ पे आपका क्या होना स्टार्ट हो गया, जैसे आपका न्यूलिथिक पीरियड आना स्टार्ट होता है, तो न्यूलिथिक पीरियड के आने के टाइम तक यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, दे इनोवेट फॉर द व्हील, उन्होंने व्हील बना लिया था, दे स्टार्टेड यूजिंग द व्हील, दे स्टार्टेड डूइंग द एग्रीकल्चर। तो यहाँ तक आते आते दे स्टार्टेड मेकिंग द पॉटरीज, बिकॉज इंट्रोडक्शन ऑफ अ व्हील हैव बीन देयर इन द Neolithic period. So systematic agriculture was started, which made it possible due to the change into the climate. Use of fertilizers, sickles, potteries in the agriculture, they have started. Slash and burn kind of agriculture they were using at that time. Horse gram ragi, what they started cultivating. Wheels were discovered in this age. तो जैसे wheels यहाँ पे discovered हो जाएंगे, pottery आपकी थोड़ी furnish होनी start हो गई. Pottery were present in the Mesolithic also, but that was a handmade pottery, not the wheel pottery. एग्रीकल्चर भी आपका इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली किस लिए यूज करेंगे, फॉर प्रोटेक्शन एंड फॉर हैविंग अ मिल्क एंड ऑल। तो दैट इज अ वन कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, तो शीप हो गए, गोट हो गए, कैटल हो गए, दे डोमेस्टिकेटेड, दे इवन डोमेस्टिकेटेड द डॉग, पिग्स, चिकन वर आल्सो फाउंड। अब हमें पता कैसे चला, कोई देखने थोड़ी गया था। व्हाट वी हैव फाउंड कि जहां पे आप रह रहे हो, इफ यू किल सम काइंड ऑफ एनिमल, इफ द एनिमल इवन डाई, तो आप वहां पे क्या करोगे, उसको आप जमीन के नीचे वहां पे उसकी बोन्स वगैरह मिलेंगी। तो दैट इज अ वन, फ्रॉम देयर वी कम टू नो कि भाई सम काइंड ऑफ एनिमल्स वर प्रेजेंट एट दैट टाइम। अभी यहाँ पे हॉर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से देखिएगा कि हॉर्स को कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया, नीदर इन द पैलियोलिथिक, नीदर इन द मेसोलिथिक, नीदर इन द नियोलिथिक इवन। तो हॉर्स क्यों नहीं था, हॉर्स अभी बताएंगे हम, जब आर्यंस आएंगे तब हॉर्स आएगा, ठीक है, अभी हॉर्स यहाँ पे नहीं आएगा। तो हॉर्स वर नॉट प्रेजेंट, क्योंकि हॉर्स का हमको कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। हम एकदम स्पेसिफिकली नहीं कह सकते हैं कि हमें नहीं मिला, मतलब या हम अभी नहीं उसको खोज पाए हैं, या फिर आप कह सकते हो मिल पाए, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो एज पर नाउ, if the question will ask you the horse were present in the all the three stone ages, तो no, horse का कोई भी एविडेंस यहाँ पे नहीं मिलता है। नीदर एनी काइंड ऑफ लाइक जो हमको कुछ आप कह सकते हो जो एविडेंसेस उनकी बोन्स के मिलते हैं, बाकी चीजें मिलते हैं, उनमें भी हॉर्स हमें कहीं भी नहीं मिला है। तो फायर बेक अर्थन पॉट्स भी थे, दे आल्सो स्टार्टेड मेकिंग ऑल दोस, बनाना शुरू कर दिए गए थे। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट साइट्स, तो नियोलिथिक साइट्स हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्यों हो जाती है, जब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे देन वी कम टू नो, बिकॉज इन साइट्स पे कौन कौन सी चीजें थी जो हमें स्पेसिफिकली मिली। डॉकयार्ड था, बेंगल्स थे, बेंगल्स की फैक्ट्री थी, शिपयार्ड्स थे, ग्रेनरीज थे, ग्रेट ग्रेनरीज थे, क्या चीजें थी वो जो हमको यहाँ पे मिली, वो हमको जो पढ़ना होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती। जितनी भी साइट्स हैं, उन साइट्स पे कौन कौन सी चीजें हमें फाइंडिंग्स में मिलती हैं, दो ज्यादा इंपॉर्टेंट वन विच वी नीड टू फोकस ऑन ओवर दिस टॉपिक। अब देखिए, why I have skipped all the back slides, the thing is like कि जो हमें पढ़ना है that would be like आपका पूरा एग्जाम फोकस्ड होना चाहिए, किसने किसको मारा, क्या था क्या नहीं था, which is not important. What is important कि भाई आपका जो MPPSC है एग्जाम कहाँ से पूछ रहा है, आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, एंड फोकस मोर कहाँ पे होना चाहिए, जहां से क्वेश्चन बन रहा है, तो दैट इज अ वन। तो दीज आर द सर्टेन टॉपिक्स वर द वन। देन आपका चाल्कोलिथिक एज आ जाता है, चाल्कोलिथिक एज को भी हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं, दैट इज अ वन। देन चाल्कोलिथिक बेसिकली आप कह सकते हो दैट वाज अ मेटल एज, कहाँ से आपका मेटल बनना स्टार्ट हो गया, या उसको एक तरीके से आप नियोलिथिक पीरियड का जब एंड आपका हो रहा था या चल ही रहा था एक तरीके से कह सकते हो, तो दैट वाज कॉल्ड एज अ ब्रॉन्ज एज ऑल्सो, कि जब आपका स्टोन एज अब खत्म हो गया,
अभी क्या हो जाएगा, मेटल आ जाएगा, मेटल आ जाएगा तो दे कैन स्टार्टेड यूजिंग दैट मेटल एज अ वेपन्स आल्सो इन द मेकिंग द यूटेंसिल्स आल्सो। तो अभी थोड़े से वो लोग इवॉल्व हो जाएंगे। मेटलर्जी इज द वन जो दे स्टार्टेड यूजिंग, गोल्ड की मेटलर्जी वगैरह, वो सारी चीजें भी आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज स्टार्ट हो जाती है। तो दैट इज द चारकोलिथिक एज। So if we talk about the previous year questions for the mains, so that is one. These are the some pre-questions I have included in this slide. That is the one. And if we talk about the mains question, तो MPPSC में एक क्वेश्चन पूछा गया था GS पेपर 1 में, that was on explain, that is I have taken that question related with the topic I have covered over here. So that is the one, explain the different phases of Stone Age, specifying the characteristic features of the different sites. तो if we talk about the Stone Age, तो अभी हमको अगर इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच करना है तो what are the things we need to focus? See, बेसिक अप्रोच हमको आईबीसी अप्रोच रखनी होती है जब भी हम कोई भी आंसर लिख रहे हैं, वेदर इट्स फॉर द यूपीएससी, वेदर वी आर राइटिंग फॉर द एनसीईआरटी एग्जाम एंड ऑल, everywhere while writing an answer which we need to focus on three things, that is like the introduction, then the body, and the third one is conclusion. किसी भी चीज को आपने स्टार्ट कर दिया, अगर आप उसको एंड नहीं कर रहे हो सही तरीके से, दैट इज द वन, वो इनकम्प्लीट माना जाता है। तो फॉर कंप्लीटिंग अ क्वेश्चन यू नीड टू फोकस ओवर टू द three areas, that is like the introduction, कि what the question is asking specifically, then the body and the conclusion. अब यहाँ पे क्या आता है कि जब when we are writing towards the mains, कि आपके ऑप्शनल के आंसर्स अगर आप लिखने जा रहे हैं तो ऑप्शनल भी, I mean the mains answer writing, if you focus upon, you need to focus over the question कि are they, what they are asking, they asking to explain the term which they have given the question, illustrate बोला है, क्रिटिकली एग्जामिन बोला है, या क्या बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। सपोज इन्होंने बोला एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेस ऑफ स्टोन एज, अगर इफ दे हैव मेंशन, एक्सप्लेन का मतलब है कि किसी भी टॉपिक के बारे में आपको जितनी भी नॉलेज है आप यहाँ पे दो सर्टेन वर्ड लिमिट के अंदर, ठीक है। आपको वो एक्सप्लेन आपने कर दिया, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए बस, ठीक है। उन्होंने उसको कोई क्रिटिकल नहीं माना कि अच्छा था, बुरा था, क्या था, क्या नहीं था। लेकिन यहीं पे अगर उन्होंने बोल दिया होता क्रिटिकली एग्जामिन द स्टोन एज, तो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता, आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल द स्टेजेस, लाइक इन द स्टोन एज वी हैव कवर्ड कि पैलेयोलिथिक हो गए, मेसोलिथिक हो गए, देन आपका नियोलिथिक था, I need to give the statement in my conclusion कि भाई why they were divided among the basis of the like stone के basis पे, या evolution के basis पे, या enhancement of the weapons के basis पे they have divided the that age particularly, और I need to critically examine कि भाई कौन सी चीज बेटर थी, कौन सी चीज नहीं थी, ठीक है। तो दैट इज अ डिफरेंस कि वो चीज हमको पहले क्वेश्चन के ऊपर देखना है। नाउ दे हैव आस्क्ड एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेस ऑफ स्टोन एज, स्पेसिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द डिफरेंट साइट्स। तो डिफरेंट साइट्स मतलब अब हमको साइट्स पता होनी चाहिए कि भाई आपके पैलेयोलिथिक में कौन सी साइट थी, मेसोलिथिक में कौन सी साइट थी, नियोलिथिक में कौन सी साइट थी, ठीक है। एंड वन साइट इज द वन जिसको भीमबेटका केव्स बोला जाता है, दैट इज अ साइट पर्टिकुलरली बिलोंग्स टू ऑल द एजेस, ठीक है। वहां पे पैलेयोलिथिक मेन भी था, मेसोलिथिक मेन भी था, वहां पे नियोलिथिक मेन भी रहता था। तो एवरी टाइप ऑफ एविडेंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम द आपका भीमबेटका केव्स में से मिलता है। तो एक पर्टिकुलर, एक बार ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, I don't remember actually the year exact, but the question have been asked which among these sites of Stone Age belongs to the all the three categories of Stone Age. तो वो आपका क्या था, भीमबेटका केव था जो एमपी में बिलोंग करता है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच क्या रखी जाएगी, तो हमको अप्रोच क्या रखना है कि भाई ब्रीफली एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। डिवीजन ऑफ हिस्ट्री कि भाई हिस्ट्री को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया, हिस्ट्री को हमने कैसे डिवाइड किया, हिस्ट्री को हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड में डिवाइड किया, देन प्रोटो हिस्टोरिक में किया, देन हमने उसको आपका हिस्टोरिक पीरियड में डिवाइड किया। देन आफ्टर कंप्लीटिंग, अभी इसमें आप क्या कर सकते हो, अभी इसमें आप अगर आप आंसर लिखने जाएंगे तो व्हाट यू नीड टू डू फॉर राइटिंग द आंसर, यू कैन यूज द फ्लो चार्ट। लाइक फ्लो चार्ट में सपोज आपने यहाँ पे लिखा कि भाई अगर आपको स्टोन एज डिफाइन करनी तो उससे पहले आपको हिस्ट्री डिफाइन करनी। हिस्ट्री क्या है, अमंग द थ्री पार्ट्स आपने यहाँ पे डिफाइन किया। थ्री पार्ट्स में यहाँ पे डिफाइन करने के बाद कि भाई ये आपकी प्री हिस्ट्री हो गई, ये आपकी प्रो हिस्ट्री हो गई, प्रोटो हिस्ट्री हो गई, और ये आपका हिस्टोरिक पीरियड हो गया। तीनों की आपने स्पेसिफिकेशन बता दिए, तो आपका ये क्या होगा, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री हो गया, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इन अमंग दैट द प्री हिस्टोरिक पीरियड द स्टोन एज बिलोंग्स टू, हमारी स्टोन एज क्या करेगी,
बिलोंग करेगी। अभी स्टोन एज को फिर द फर्दर हमने कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया है? स्टोन एज को हमने स्टोन एज क्यों बोला है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्टोन एज को स्टोन एज क्यों बोला गया? व्हाई इट हैज बीन गिवन एज अ नेम ऑफ अ स्टोन एज? स्टोन एज क्यों? क्योंकि भाई दिस वाज अ पर्टिकुलर या प्रेवलेंट काइंड ऑफ लाइक आप कह सकते हो कि द एलिमेंट विच यूजिंग एट दैट टाइम, दैट इज लाइक आपका स्टोन एज बोल दिया गया। स्टोन एज को फर्दर डिवाइड कर दिया, पैलेलिथिक में हो गया, मेसोलिथिक में होगा, देन आपका नियोलिथिक में हो गया। देन आपने उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर दी कि भाई वहां पे आपकी द स्टोन एज में अगर हम बात करें पैलेलिथिक में, तो एक पर्टिकुलर मैन जो था दैट वाज लाइक हंटर एंड गैदरर। मेसोलिथिक में भी हंटर एंड गैदरर था। न्यूलिथिक में दे स्टार्टेड लाइक हैबिटेटिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो देन आपका पहले एकदम प्रिमिटिव स्टेज में रहता था, देन थोड़ा सा मॉडर्न हुआ हल्का सा, देन न्यूलिथिक में थोड़ा और मॉडर्न हो गया। डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए, कौन कौन सी साइट्स थी, पर्टिकुलर साइट्स दे बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे जो फाइंडिंग वाला पार्ट मैंने रहने दिया, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द डिफरेंट साइट्स। अभी जो डिफरेंट साइट्स थे उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो पार्ट मैंने स्किप किया था कि कौन सी जगह, सपोज बुर्जा होम है, बुर्जा होम में क्या चीजें मिली, कालीबंगन है, तो दैट कालीबंगन इज बिलोंग्स टू, आई मीन क्यों से कालीबंगन बोला गया? हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला गया, तो क्यों उसको एज अ सिविलाइजेशन क्यों बोला गया? जो साइट वहां पे मिली, वहां की फाइंडिंग्स क्या थी कि भाई वहां पे आपको प्रीस्ट की एक स्टैचू मिला है, प्रीस्ट स्टेचू मिला है, बीड्स की आपको माला टाइप मिले हुए हैं, द नेकलेसेस यू हैव फाउंड ओवर देयर। तो दिस इज द थिंग कि वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, एंड देन कंक्लूजन आपको इसका देना पड़ेगा। कंक्लूजन इन दी सेंस कि भाई दीज आर द थिंग कि कहाँ पे क्या चीज पाई जाती है, कैसा था, या वहां की स्पेसिफिक साइट। हम इनसे क्या पता चलता है? हमको इससे आपकी एक पर्टिकुलर हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, विच वी नीड टू फाउंड कि भाई स्टोन एज क्या थी, कैसे थी, क्या नहीं थी, आफ्टर एक्सकवेटिंग ऑल दोज साइट्स। Then here this is the end of the slide. So thank you very much.